हेलो। हेलो। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, हाँ, बोर्ड दिख रहा है। Yes, sir. Board is there. लेट अस बिगिन। और लास्ट लेक्चर में आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द कंडीशंस ऑफ criticality and I explained to you guys what does critical temperature, critical pressure and critical volume means. Critical temperature is a temperature below which a gas can be compressed with sufficient pressure to convert it into liquid. Beyond its critical temperature, no amount of pressure applied on a gas can convert it into a liquid. ठीक है। और next thing is the temperature at which it can be first converted into liquid by applying sufficient amount of pressure is known as critical temperature, and the pressure at which the liquefaction takes place at the critical temperature is known as critical pressure, and the volume corresponding to critical temperature and critical pressure is known as critical volume. ठीक है। Obviously that gaseous system will be real in nature, so real gas system का जो volume होगा, volume occupancy, that is termed as critical volume. Now the way to deduce their values is something like this. When we start with van der Waal equation, ठीक है, and we do certain mathematical operations on it, ठीक है। ये वैन डर वाल इक्वेशन, इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे थ्रू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्या यूज करनी है, तो सी, ये पीवी कर्व जो है दिख रहा है, इसका नीचे ये है कि वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या है, इंक्रीज करेगा। दैट इज प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ इंक्रीजिंग, सॉरी, अ टाइप ऑफ मोनोटोनस फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इट इज एक्चुअली अ डिक्रीजिंग फंक्शन। एक्स की वैल्यू घट रही है तो वाई की वैल्यू बढ़ रही है, और y की वैल्यू घट रही है तो x की वैल्यू बढ़ रही है, यानी x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू घट रही है। तो x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू घटती है अगर, तो वी कॉल इट डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। एनीवे, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है उससे फर्क ज्यादा मुझे नहीं पड़ता है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि दिस इज चेंजिंग इन वन डायरेक्शन। ठीक है। यानी if my volume is increasing, pressure is definitely going to decrease, or my volume is decreasing, pressure is definitely going to increase. So that type of relationship is there in pressure volume graph, or in this zone, in this zone, and the same is true almost in this zone also. ये blue line जो है, इस पर भी लगभग similar conditions apply हो रहा है, right? At the same time, this curve, the light blue area which has been marked, which actually represents the vapor phase. ठीक है। इट्स काइंड ऑफ पैराबोलिक इन नेचर। बात समझ में आ रही है? इट्स काइंड ऑफ पैराबोलिक। इट्स नॉट परफेक्टली पैराबोलिक, परफेक्टली पैराबोलिक पर ये ऐसे आना चाहिए था, बट इट इज
matching to somewhat parabolic nature with a maxima at somewhere at the top. ठीक है, and it is that point where this thing, the blue curve is actually intersecting with this curve, right? Blue curve is intersecting with this curve. Now ये जो ब्लू कर्व या ग्रीन या इस रेड वाले का जो नेचर है वो क्या है, मोनोटोनस है, दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। और यहाँ पर कैसा हम लोग को नेचर मिल रहा है, इस कर्व के हिसाब से, इस कर्व के हिसाब से नेचर जो मिल रहा है वो ये है कि वो पॉइंट जो है वो मैक्सिमा पॉइंट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि दैट इज द मैक्सिमा पॉइंट, ठीक है। रियलिटी नेचर जो होती है वो इन दोनों चीजों की कंबाइन होगी, क्योंकि दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों के ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, दैट इज गोइंग टू कैरी द नेचर ऑफ बोथ द कर्व्स, ठीक है। दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा तो ये नहीं होएगा, but it will be a point of rather it will be a point of inflection. Point of inflection का मतलब क्या होता है कि if I'm going to take this curve, जो भी कर्व ले, ये वाले कर्व को अप्रोक्सीमेट करें या ये वाले कर्व को अप्रोक्सीमेट करें, और dp by dv will be equal to 0, ठीक है, and at the same time d square p by dv square will be equal to 0 as well, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें एक साथ कंप्लाई होती हैं, वी कॉल दोज पॉइंट्स एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर ये जीरो ना हो करके डी स्क्वायर पी बाई डी वी स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये वाला और ये वाला साथ साथ में कट सेटिस्फाई होएगा, ठीक है ना, dp by dv is equal to 0 and d square p by dv square positive, that implies that point is point of point of minima, ठीक है, और dp by dv is equal to 0 and d square p by dv square is equal to negative, implies point of maximum. It is like first derivative should be equal to 0, first derivative of any variable, ठीक है, और dependent variable with respect to any dependent variable gives the slope of the curve, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या मिलता है हमको, स्लोप ऑफ द कर्व मिलता है, और सेकेंड डेरिवेटिव से हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मिलता है। तो इट्स लाइक कि अगर स्लोप किसी पॉइंट पर जीरो है और उस पॉइंट पर डी स्क्वायर पी बाई डी वी स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, मतलब वो पॉइंट जो है वो मिनिमा पॉइंट है, और डी पी बाई डी वी इक्वल टू 0 है उस, और उसी पॉइंट पर डी स्क्वायर पी बाई डी वी स्क्वायर इज निगेटिव, दैट मीन्स दैट पॉइंट इज ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमम मिनिमा का मतलब ये नहीं होता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा ही होगा। सी देयर आर टू थिंग्स, कभी भी फंक्शंस में हम देखते हैं, ये मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ये मान लो फंक्शन है, ठीक है, इस तरीके से ये लंबा सा फंक्शन दिया हुआ है, ये सारे पॉइंट जो हैं दे ऑल आर पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, these are called points of extremum,
ठीक है, क्योंकि इन सब जगह पे टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। यहाँ पर dy बाई dx जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इन सारे जगहों पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, परफेक्ट। ठीक है, और ये सारे पॉइंट को पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। इज इट ओके? इनमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो मैक्सिमा है और कुछ मिनिमा है। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो हैं दे ऑल आर पॉइंट ऑफ मिनिमा। दे आर कॉल्ड एज लोकल मिनिमा। क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, इनमें से जिसकी वैल्यू सबसे कम होएगी, कैलकुलेट करेंगे सारे वैल्यूज को, कंपेयर करेंगे, जिसकी वैल्यू सबसे कम रहेगी दैट विल बिकम ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, इधर अप वाला देखेंगे तो ये सारे के सारे मैक्सिमाज पॉइंट होंगे, और इनमें से जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होएगा, again these are going to be called as what, local maxima. So there can be local, I mean maxima, there can be multiple local maxima, और उन सबकी वैल्यूज को कंपेयर करके we are going to get a global maxima, right? अब कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर dy बाई dx 0 है, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, दैट हैपेंस टू बी 0 ओनली। ठीक है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 है, ऐसे सिनारियो में द नेचर ऑफ कर्व इज नॉट नोन। नेचर ऑफ कर्व इज नॉट नोन का मतलब ये होता है कि वो जो पॉइंट है, एक्सट्रीमम पॉइंट, वो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, ये हमको पता नहीं चल पाता है। वो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम तो रहेगा, बट इट विल नॉट बी आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब पॉइंट ऑफ अननोन और अनसर्टेन बिहेवियर। ठीक है, अ पॉइंट ऑफ अनसर्टेन बिहेवियर, अनसर्टेन बिहेवियर एज इन उस पॉइंट के अबाउट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में वेदर द फंक्शन इज चेंजिंग इट्स नेचर, मतलब इंक्रीज करते करते डिक्रीज कर रहा है या डिक्रीज करते करते इंक्रीज कर रहा है, ये चीज की क्लैरिटी नहीं मिल पाती है हमको। ठीक है, मतलब फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करते करते वहां से इंक्रीज करना चालू किया, या इंक्रीज करते करते वहां से डिक्रीज करना चालू किया, इसका हमको आइडिया नहीं मिल पाता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिंपल लैंग्वेजेस में हम बोले तो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, हेलो, and one such point of confusion is this point. The nature of this point is as such, the curve is not clear whether, or the nature of curve, it's not clear whether it is increasing at this, I mean उस point के just left या right में, whether it is increasing or it is decreasing, that is not clear. ठीक है, and this curve actually behaves as uh, confused curve at that point. और वो कंफ्यूजन को मैथमेटिकली हम लोग कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे लिखते हैं, dp by dv should be equal to 0 and d square p by dv square should be again equal to 0। ठीक है, ये कर्व्स जो बने हुए हैं हमारे, दैट इज एक्चुअली मेड फ्रॉम this equation, van der Waal equation, real gas equation. So can I operate these two things?
by claiming that the point E the point E is the point of contact nearly hyperbolic nearly hyperbolic gaseous isotherms PV isotherms and vapor phase PV equilibrium curve. The nature of curve at E is that of point of inflection. Inflection that is dp by dv is equal to 0 and d square p by dv square is equal to again 0. ठीक है. Okay. Now let us do one thing. We have our van der Waals equation, that is P plus AV square into V minus B is equal to RT. From this we can rearrange it and get that RT by V minus B minus A by V square is equal to P. Now I can differentiate this equation 1 with respect to volume. So this will become dP by dV is equal to, पहला टर्म को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो दिस विल बिकम आर टी बाई वी माइनस बी का होल स्क्वायर विथ माइनस साइन. ठीक है. दिस कैन बी वी माइनस बी. अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस आर टी वी माइनस बी टू द पावर माइनस 1. ठीक है. और इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इट विल बिकम वी आर टी इंटू वी माइनस बी. ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट रहेगा, आर टी है, टेम्परेचर है, जबकि हमको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो ये वेरिएबल will behave as a constant, only this will be there. Any number x to the power n is a को डिफरेंशिएट करते हैं तो इट बिकम्स n x n माइनस 1. ठीक है.
यहाँ पर -1 है तो -1 will come here, it will become minus, and -1 will become -2. ठीक है, so finally मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, the after differentiation it will become minus RT v minus b raised to -2, तो -2 लिखने के बजाय मैं इसको लिख देता हूँ RT by v minus b स्क्वायर. ठीक है, सिमिलरली इस वाले को करूंगा तो दिस विल बिकम प्लस 2a बाई वी क्यू. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? दिस इज अगेन v रेज टू द पावर -2 यहाँ पर आया तो +2 हो गया, एंड -2 - 1 विल बिकम -3. v रेज टू द पावर -3 को मैंने डिवाइडेड बाई वी क्यूब लिख दिया. ठीक है, इज इट ओके? फाइन. अरे so dp by dv is going to, if I am going to differentiate p with respect to volume, we are going to get this equation, and point E to be a point of inflection, this particular thing has to be equal to 0. So this will become my equation number 2. The third equation will come by differentiating this particular thing with respect to volume again one more time. So d square p by dv square will become equal to, अभी ये v रेज टू द पावर v माइनस b रेज टू द पावर -2 है, तो -2 का यहाँ पर आएगा तो इट विल बिकम माइनस ऑफ -2 दैट इज +2. सो 2 RT बाई v माइनस b का होल क्यूब. ठीक है, v माइनस b रेज टू द पावर -2 -1 दैट विल बी -3. -3 को मैंने v बाई v माइनस b क्यूब कर दिया. ठीक है, एंड यहाँ पर क्यूब था तो इट विल बिकम -6a by v to the power 4, and this will also be 0. ठीक है, ये डिफरेंशिएशन, this can be written as v raised to the power -3, -3 यहाँ आ गया, और ये -3 का -4 हो गया. ठीक है, एंड v raised to the power -4 को मैंने लिख दिया 1 by v4. Is it okay? So we have these two equations. इन दोनों को मैं थोड़ा सा और चेंज करके लिख लेता हूँ, तो इट विल बिकम 2a by v cube is equal to RT by v minus b का होल स्क्वायर. ठीक है, और इधर वाले को अगर लिखते हैं हम लोग तो इट विल बिकम RT by v minus b का होल क्यूब is equal to 3a by v4. 2 कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे एंड 0/2 विल बिकम 0, राइट. 2 कॉमन लेकर के इस साइड ला करके डिवाइड करेंगे तो 2/0 विल बिकम 0. रेस्ट ऑफ द थिंग्स इसको राइट साइड लेकर के आ गया तो 3a by v to the power 4 is equal to RT by v minus b क्यूब. ठीक है, अब एक्चुअली यही इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है. Now if I am if I am going to divide these two equations, if I am going to divide these two equations, what will I get? LHS को LHS से डिवाइड करूं और RHS को RHS से डिवाइड करूं तो what will I get? Dividing LHS and RHS of
equation 3 by equation 2 we get 3 by 2 v is equal to 1 by v minus b। ठीक है, एक स्टेप में अगर नहीं समझ में आ रहा है ये रिलेशनशिप, आई विल राइट हियर 3a by v to the power 4 divided by 2a by v cube is equal to rt by v minus b का whole cube divided by rt by v minus b का whole square, which can be also written as 3a by v to the power 4 into v cube by 2a is equal to rt by v minus b का whole cube into rt and ऊपर में v minus b का whole square। now they can be cancelled and अब मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। this a will get cancelled with this cube will get cancelled, only one v will remain, this will get cancelled, this will go, this will be cancelled, so 3 by 2 v is equal to 1 by v minus b is the final thing which I am getting and which I have written there। ठीक है, is it okay? ये पॉइंट समझ में आया? Yes, and sir. from this if we cross multiply we get 3v minus 3b is equal to 2v। फिर से रीअरेंज करेंगे इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो v इज इक्वल टू 3b आ रहा है। ये कौन सा v है? ये वो v है, v का वैल्यू है जिसके लिए या जिस वैल्यू पर dp बाई dv एंड डी स्क्वायर पी बाई डीवी स्क्वायर ये दोनों साइमल्टेनियसली जीरो हो रहे हैं। यानी ये कौन सा वॉल्यूम होगा? दिस विल बी द क्रिटिकल वॉल्यूम। एम आई मेकिंग सेंस? दिस वॉल्यूम पॉइंट विल बी व्हाट? क्रिटिकल वॉल्यूम पॉइंट, राइट? V is equal to 3b and V is equal to 3b, dp by dv will be equal to 0 and d square p by dv square will be equal to 0 as well। Therefore this V is critical volume, right? And it can be referred as VC is equal to 3B। अब यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि VC की वैल्यू किसी भी गैस के लिए उसके
इंट्रिंसिक पैरामीटर बी पर डिपेंड करता है। किस चीज पर डिपेंड करता है? इंट्रिंसिक पैरामीटर बी। बी क्या है, किस चीज का इंडिकेटर है? उनके वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी का। एक्चुअली जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, गैसियस पार्टिकल, स्मॉल टीनी गैसियस पार्टिकल, वो एक्चुअल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसी का रिप्रेजेंटेटर है ना बी, राइट? द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज द रिप्रेजेंटेटर ऑफ actual volume occupied by the gaseous particles, isn't it? पूरे बड़े कंटेनर में छोटे छोटे गैसेस पार्टिकल्स, इन सब के वॉल्यूम को हम ऐड कर देते हैं तो वी गेट बी, isn't it? और ये पूरा वॉल्यूम जो है वो इन पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। इसको बोलते हैं फ्री वॉल्यूम, अवेलेबल फॉर गैसेस, मूवमेंट ऑफ गैसेस पार्टिकल्स, राइट? और इनकी वैल्यू को, इनके वॉल्यूम को ऐड कर दें तो क्या मिलता है हमको? बी का वैल्यू। और वी कॉल इट वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी ऑफ गैसेस पार्टिकल्स और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, राइट? सो क्रिटिकल वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ओनली ऑन बी। अब इसकी वैल्यू को, फोर्थ बीसी की वैल्यू को अगर मैं सेकेंड या थर्ड किसी भी एक इक्वेशन में डालता हूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज अ टेम्परेचर का वैल्यू, and this temperature will be nothing but critical temperature, right? The temperature at which the conditions of criticality will be met. So I'll put it in equation 2, that is putting Vc in equation 2 will get 2a by v square, so 2a by v cube is equal to RT by v minus b का होल स्क्वायर। v के बदले 3b अगर हम रखते हैं तो इट विल बिकम 2a बाई 8b स्क्वायर, सॉरी 27b स्क्वायर, b क्यूब, 27b क्यूब इज इक्वल टू r इंटू टी डिवाइडेड बाई 2b का होल स्क्वायर, दैट इज 4b स्क्वायर, ठीक है? और t is equal to, this can go up to make 2a into 4b square by 27b cube into r, और this will get cancelled, ये वाला cancel हो जाएगा और a बचेगा and rest thing will remain as it is. So t becomes 8 by 27r, sorry 8a by 27 rb या br, ठीक है? दिस इज आवर टीसी। टीसी की वैल्यू क्या है? 8a बाई 27br। अब टीसी एंड वीसी दोनों की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ। इक्वेशन 1, putting TC and VC in equation 1, we get या फिर T is equal to
आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर आर इंटू टी के बदले ये वैल्यू रख देंगे 8a बाई 27 br divided by v minus b 3b minus b minus a by v square that is 3b का whole square. ठीक है, this will turn out to be r will get cancelled. यहाँ पर 2b रहेगा, so this will become 8a by 27b into 2b minus a by this will become 9b square. ठीक है, और ये 2 को कैंसिल 8 को कैंसिल करेगा 2 तो 4 हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 4a by 27b square माइनस a by 9b square. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो दिस विल बिकम 27b square 4a minus 3a that is a by 27b square. Thus our PC becomes equal to a by 27b square. ठीक है, VC क्या है? थ्री बी एंड PC क्या है? इट इज 8a by 27br. Is it okay? Now these critical conditions, ठीक है, ये critical conditions क्या है? किसी भी गैस के लिए उनके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि इंट्रिंसिक पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, राइट? This is going to be unique for unique gas as the intrinsic parameter for a gas is its unique property, right? किसी का साइज या फिर उसके अट्रैक्टिव एबिलिटीज जो है those are its own intrinsic ability. Am I making sense? Okay. यहाँ पर एक छोटी सी चीज और, let us calculate compressibility factor of a gas at critical condition. फॉर्मूला क्या है हमारा? Z is equal to P into V by RT, right? PCVC, that will simply become PCVC by RTC. वैल्यूज रख लेते हैं. प्रेशर इज A by 27 B square multiplied by VC that is 3B divided by R into TC 8A by 27 BR. ठीक है, और B will get cancelled. 3 will cancel this to make it 9. या एक सेकेंड, B को B से कैंसिल किया, बाकी रहने देते हैं. इनफैक्ट इसको भी इस स्टेप के लिए रहने देते हैं. Let me first rearrange it and then we will cancel all of them together.
So this will become A into 3B divided by 27B square multiplied by R multiplied by 8A, and this denominator will go up to become 27BR. Okay, and now we can cancel this R with this. A will get cancelled. This B and this B will together cancel this one. 27 will cancel 27. Thus, the net figure which remains is Z at point of criticality is 3 by 8, right? Compressibility factor for all the gases at their critical conditions will be same, and it is equal to 3 by 8. Now criticality condition जो है, सॉरी जेड compressibility factor जो है वो रिलेटिव अट्रैक्टिव पावर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है. इट इज अ representation factor or a factor which represents relative attractive strength of gaseous molecules at a particular condition, right? और यहाँ पर जो हमको मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन में, यानी जब चीजें गैसेस लिक्विफाई होने वाली है, जस्ट लिक्विफाई होने वाली है, उस कंडीशन में सारे गैसेस का रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होता है, अट्रैक्टिव रिलेटिव अट्रैक्टिव पुल, वो क्या होता है, सब में बराबर होता है. बात समझ में आ रही है? द थिंग विच आई एक्चुअली आस्क यू गाइज कल के दिन में, मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा था आखिरी के 5 मिनट में, व्हाट डू यू गाइज थिंक, रिलेटिव स्ट्रेंथ सेम रहेगा नहीं रहेगा? एंड वी फाइनली कंक्लूडेड कि हाँ लग रहा है सेम रहेगा. दिस इज अ प्रूफ फॉर दैट कि अगर जेड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारा सेम है, दैट मीन्स the relative attractive force of gaseous particle at their critical condition must be same. ठीक है? Are we getting this point? So I can simply say that the relative attractive strength of gas of all gaseous systems at their critical conditions is exactly the same. Is it okay? So आप लोगों को दो चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंटली याद रखनी है. ये डेरिवेशन बाकी का याद रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है. मुझे ये चाहिए कि आपको पीसी का वैल्यू, वीसी का वैल्यू और टीसी का वैल्यू याद रहे हमेशा सारे लोगों को. आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? PC is equal to A by 27B square, VC is equal to 3B, TC is equal to 8A by 27RB. This is something which is basic and I want all of you to remember this as well as this point. Clear? Hello? Yes, sir. Okay. ठीक है. और अच्छा, ये चीज जब कॉमन आया, रिलेटिव अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ of all gaseous systems at their critical conditions is exactly the same. So scientists
or people in science fraternity started exploring an idea कि जब सारे पार्टिकल्स एकदम क्लोज हैं यानी क्रिटिकल कंडीशन, तब तो रिलेटिव अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ सबका बराबर हो रहा है. तो इज इट लाइक, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट अगर मैं प्रोपोर्शनली इनके इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन को चेंज करूं, जैसे ये सिस्टम के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो इसके अंदर थोड़ा ज्यादा बढ़ाया, और दूसरे वाले के अंदर थोड़ा कम अट्रैक्टिव फोर्स है तो इनको थोड़ा कम कम सेपरेट किया, दैट इज अगेन थिंग्स हैज टू बी चेंज रिलेटिवली, नॉट एब्सोल्युटली. ठीक है, एब्सोल्यूट चेंजेस के लिए तो हमारे पास वैंडरबॉल गैस इक्वेशन है ही, ठीक है ना. यहाँ पर दे स्टार्टेड लुकिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलेटिव चेंजेस. ठीक है, तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसमें ज्यादा सेपरेशन पे, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है उसमें कम सेपरेशन पे. दे ट्राई टू फिगर इट आउट, कैन वी हैव और डज देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप जिसमें हम इनके रिलेटिव सेपरेशन एंड रिलेटिव अट्रैक्टिव फोर्सेस के बेसिस पर कुछ एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें. ठीक है, अब ये रिलेटिव अट्रैक्टिव फोर्स और रिलेटिव सेपरेशन जो है ये हम प्लॉट कैसे करेंगे या किस पैरामीटर से लेकर के आएंगे, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट उन्होंने पीसी, वीसी एंड टीसी को ही रखा. ठीक है, क्योंकि ये हर गैस के लिए अपना अपना इंट्रिंसिक वैल्यूज है, पीसी की वैल्यू, वीसी एंड टीसी की वैल्यू, एंड फ्रॉम देयर केम द स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ गैसेस स्टेट. अब रिड्यूस्ड इक्वेशन में होता क्या है, दैट इज समथिंग व्हिच आई विल बी एक्सप्लेनिंग. Pg, okay, there is something called as reduced temperature. ठीक है, equation reduced equation of gaseous. There is something called reduced temperature. It is simply defined, I mean, it is indicated by TR, and it is given as the absolute temperature यानी T in Kelvin. ठीक है, absolute temperature, that is T divided by Tc of a gas, or simply T by Tc. ठीक है, तो जैसे किसी गैस का Tc जो है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, 50 केल्विन, और टेम्परेचर अभी हमने लिया 300 केल्विन, तो रिड्यूस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? रिड्यूस टेम्परेचर बोले या रिलेटिव टेम्परेचर, बट इट इज टेक्निकली इट इज कॉल्ड रिड्यूस टेम्परेचर. ठीक है, सिमिलरली रिड्यूस्ड वॉल्यूम के लिए if total volume occupancy, reduced volume and reduced pressure, ये तीनों टर्म हम निकालते हैं या डिफाइन करते हैं. सॉरी, reduced volume,
this is VR, volume by VC, or simply V by VC. ठीक है. Similarly, reduced pressure PR, this will be P by PC. ठीक है. So अभी क्या है हमारा? Can I say that P is equal to PC into PR? ठीक है. Similarly, T is equal to TC into TR, and V is equal to VC into VR, right? Is it okay? Hello. Now I'm going to put this P, T and V value in van der Waal gas equation. ठीक है. That is P plus A by V square into V minus B is equal to RT. ठीक है. So putting these P comma T comma V values in van der Waal equation, we get P के बदले we can have PC into PR, right? Plus A by VC into VR का whole square multiplied by VC into VR minus B is equal to R TR TC. ठीक है. PC, VC एंड TC की वैल्यूज हमको पता है क्या होती हैं in terms of A and B of the gases, right? PC की वैल्यू क्या होती है? What is PC? So 3/8. PC is? So no, sorry, sir. TCF. हाँ. A by 27B. 27B square. A by 27B square into PR plus A by VC क्या है? 3B into VR का होल स्क्वायर. ठीक है. फिर से 3B into VR minus B is equal to R TR into TC. TC is 8A by 27 VR. ठीक है. Is it okay? Yes, sir. ठीक है. So now we can simply operate them all.
यहाँ से b कॉमन आ जाएगा, दिस टर्म विल बिकम b इंटू 3vr माइनस 1, और यहाँ से हम लोग अगर कॉमन निकालेंगे तो इट विल बी a which will come out and divided by 9b square will be also there, और यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा pr by 3 प्लस a by vr square, ठीक है, into this term it is going to be equal to r into pr into 8a by 27 vr, r will get cancelled, ठीक है, this b will cancel this, the other b will get cancelled with this, 9 will cancel this to make it 3, a cancel हो जाएगा, तो बचा क्या क्या, यहाँ पर एक 3 बचा, इसको अगर ऊपर ला करके इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले टर्म में, तो इट विल बिकम pr प्लस 3a बाई vr स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3vr माइनस 1 is equal to 8tr. Is it okay? Yes, sir. अरे sorry, just missed one thing. a को यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पर a नहीं रहेगा ना, ये 1 हो जाएगा ना, by mistake I wrote that a. यहाँ पर a को कॉमन लेके बाहर निकाला ना, और यहाँ पर 9b स्क्वायर को कॉमन लेकर के बाहर निकाला तो 3 यहाँ पर बचा, राइट, a बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1 रहेगा ना, I by mistake I wrote it a, so now it's corrected. ये 3 वाला इधर आकर के मल्टीप्लाई हो गया, तो इट विल बिकम pr प्लस 3 बाई vr स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3vr माइनस 1 इज इक्वल टू 8pr, और यहाँ पर एक चीज और भी कर सकते हैं, जैसे ये 8/3 जो है उसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, या फिर यार यहाँ से 3 को कॉमन निकालते हैं तो दिस विल बिकम vr माइनस 1/3, राइट, और ये 3 को इस तरफ लेकर के आ जाएंगे तो दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 8/3tr इंटू pr प्लस 3/vr स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा और इसको कुछ और फॉर्म में लिखना है हमको, तो आई कैन अगेन ऑप्ट टू राइट इट लाइक, यहाँ से भी 3 को कॉमन ले लिया और उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो pr/3 प्लस 1/vr स्क्वायर इंटू vr माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8/9tr, ठीक है, ये भी एक फॉर्म है. द मोस्ट स्टैंडर्ड वन इज either of them, either this one or this one. ठीक है, ये वाला सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी ठीक ठाक है, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है, सो this is something which I'll expect you guys to remember. Is it okay? Hello. Yes, sir.
Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक की चीजें? मतलब ये Yes. reduced equation क्यों आया, what is its relevance? We are just trying to plot or trying to see reduced equation में कि yes there exists a possibility जहां पर ये numbers अगर सेम किसी भी गैस के लिए सेम हो, ठीक है, मतलब दो गैसेस को उनके क्रिटिकल प्रेशर के 6 टाइम्स पर अगर रख रहे हैं, उनके क्रिटिकल वॉल्यूम के 5 टाइम्स पर रख रहे हैं और उनके क्रिटिकल टेम्परेचर के 4 टाइम्स पे रख रहे हो, तो उनके अंदर जेड पैरामीटर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम. दैट मींस द रिलेटिव अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ between the gaseous particles will be exactly the same, right? That is what we had tried to propose, and that is what we are achieving with the help of reduced equation of gaseous state. Now इसका ऐसे अगर सिग्निफिकेंस देखो तो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, बट एप्लीकेशन वाइज सिग्निफिकेंस जो है वो इसका बहुत ज्यादा है. इस इक्वेशन का अभी के लिए सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं दिखेगा हम लोगों को, बट एक्चुअल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में दिस equation has a greater significance. Are we getting this point? Not only industrial, even laboratory significance इसका ज्यादा है compared to other systems. Especially तब research significance अगर मैं बोलूं तो इसका ज्यादा है compared to other things, other equations. ठीक है, मुझे अगर कोई नई चीज ढूंढनी होगी या नई चीज की सुटेबिलिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस देखनी होगी, तो मैं वैंडरवाल इक्वेशन से नहीं देखूंगा, मैं इसके थ्रू देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो भी नया गैस है उसके पीसी वीसी टीसी के टर्म्स में मुझे मैं देखता हूँ, तो मुझे रिलेटिव पैरामीटर्स अगर किसी एक गैस का पता है तो इस गैस का भी फटाफट पता चल जाएगा. अच्छा, ये मेरे लिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ज्यादा ऑपरेटेबल रहेगा, एंड थिंग्स लाइक दैट. सो ठीक है, that is something which is there with this equation. Okay, fine. So we'll end our today's lecture over here.